Good morning to all of you. Class 8th, Subject Social Science, Chapter 8, Women, Caste and Reforms. Dear students, आप अपनी बुक का पेज नंबर 98 निकालेंगे। वहाँ से आज हम पढ़ेंगे वुमेन राइट अबाउट वुमेन कि महिलाओं के बारे में महिलाएं लिखने लगी। From the early 20th century, Muslim women like the Begums of Bhopal played a notable role in promoting education among women. They founded a primary school for girls at Aligarh. Another remarkable woman, Begum Rokeya Sakhwat Hossain, started schools for Muslim girls in Patna and Calcutta. She was a fearless critic of conservative ideas, arguing that religious leaders for every faith accorded an inferior place to women. तो 20वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अहम भूमिका अदा की। जैसे भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोला। बेगम रुकैया सखावत हुसैन भी इस दौर की एक प्रभावशाली महिला थी, जिन्होंने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले। ये रूढ़िवादी विचारों की कटु आलोचना थी और उनका मानना था कि प्रत्येक धर्म के धार्मिक नेताओं ने औरतों को निचले दर्जे में रखा है। By the 1880s, Indian women began to enter universities. Some of them trained to be doctors, some became teachers. Many women began to write and publish their critical views on the place of women in society. Tarabai Sinde, a woman educated at home at Pune, published a book, Stiprus Tulana, a comparison between women and men, criticizing the social differences between men and women. तो 1880 के दशक तक आते आते भारतीय महिलाएं विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने लगी थी। उनमें से कुछ चिकित्सक और कुछ शिक्षिका बन गई। बहुत सारी महिलाएं लिखने लगी और उन्होंने समाज में महिलाओं की स्थिति पर अपने आलोचनात्मक विचार प्रकाशित किए। पूना में घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक किताब प्रकाशित की, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फर्कों की आलोचना की गई है। Pandit Ramabhai, a great scholar of Sanskrit, felt that Hinduism was opposing towards women and wrote a book about the miserable lives of upper caste Hindu women. She founded a widows' home at Pune to provide shelter to widows who had been treated badly by their husbands' relatives. Here, women were trained so that they could support themselves economically. तो संस्कृत की महान विद्वान पंडिता रमाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। उन्होंने ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब भी लिखी थी। उन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की, जहां ससुराल वालों के हाथों हत्याचार झेल रही महिलाओं को पनाह दी जाती थी। वहां महिलाओं को ऐसी चीज़ें सिखाई जाती थी जिनके सहारे वे अपनी रोजी रोटी चला सके। Needless to say, all this more than alarmed the orthodox. For instance, many Hindu nationalists felt that Hindu women were adopting Western ways and that this would corrupt Hindu culture and erode family values. Orthodox Muslims were also worried about the impact of these changes. तो जाहिर है कि इन सब बातों से
रूढ़िवादी खेमे के लोग काफ़ी आग बबूला हुए। उदाहरण के लिए बहुत सारे हिंदू राष्ट्रवादियों को लगने लगा था कि हिंदू महिलाएं पश्चिम तौर तरीके अपना रही हैं, जिससे हिंदू सृष्टि भ्रष्ट होगी और पारिवारिक संस्कार नष्ट हो जाएंगे। रूढ़िवादी मुसलमान भी इन बदलावों के नतीजों को लेकर चिंतित थे। As you can see, by the end of 19th century, women themselves were actively working for reform. They wrote books, edited magazines, founded schools and training centers, and set up women's associations. From the early 20th century, they formed political pressure groups to push through laws for female suffrage and better health care and education for women. Some of them joined various kinds of nationalist and socialist movements from the 1920s. तो जैसा कि आप देख सकते हैं, 19वीं सदी के आखिर तक खुद महिला भी सुधारों के लिए बढ़ चढ़कर प्रयास करने लगी थी। उन्होंने किताबें लिखी, पत्रिकाएं निकाली, स्कूलों और प्रशिक्षण केंद्र खोले तथा महिलाओं को संगठित किया। 20वीं सदी की शुरुआत से वह महिलाओं को मताधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा के अधिकार के बारे में कानून बनवाने के लिए राजनीतिक दबाव समूह बनाने लगी थी। उनमें से कुछ महिलाओं ने 1920 के दशक के बाद विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलनों में हिस्सा भी लिया। In the 19th century, leaders such as Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose lent their support to demands for greater equality and freedom for women. Nationalist leaders promised that there would be full suffrage for all men and women after independence. However, till then, they asked women to concentrate on the anti-British struggles. तो 20वीं शताब्दी में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता व समानता की मांगों का समर्थन किया। राष्ट्र नेताओं ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुषों व महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा, परंतु उनका आह्वान था कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक महिलाओं को अंग्रेज़ी राज विरोधी संघर्ष में ही जोर लगाना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी जितना आपने आज पढ़ा है उसको आप दोबारा से रीड करोगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।